Hello friends, today's date is 14th of February 2026 and it's been time, what's the time? It's been 10:01 p.m. At the night I am shooting this video. So in this video basically I am going to tell one thing which I got to learn in this day, and I think this is going to be a first video of such type of video, because I am thinking of something that when I read my book through the series of 20 minutes towards success, I should uh, I read it very normally, but I thought that I should really share it with you, or I should really try to express it, because knowledge is spread by expressing. That's what I think. So that's why I'm thinking I'm creating this video in which I will be telling you that one new in this video I'm going to tell you one new thing which I got to learn in today's day, which I have read some hours before from this book known as Atomic Habits. So let's begin. This is going to be a first video of learning what I learned from today series. I don't call it series because I am not sure that I will be very consistent during making this video. I am making this because of one chapter which I got to I'm making this video because I from many days I have the idea to express the knowledge which I have read from that book, and also to educate you, to give you knowledge, and obviously I have got motivated by this book only, in which it is suggested that you should exchange your bad habits with some new good habits that will help you, and that will help you now and in the future also. So in this video I'm going to tell you about, there is one chapter called the law of least effort, 12th, as you can see here. So in this let me open the page first. I'll just explain it by myself. I'm not going to read it, but there are some sentences which I am going to recite, because these sentences are very important, as you should be knowing that sentence, because these sentences are very important, and if you keep that sentences in your mind, it will be very beneficial for you and your future also. So let's start. Suppose if you want to water your plants in your garden. Now think of a garden where you are standing and you want to water the plants. You can imagine of your garden also. Now let's come to point. Think you are in a garden and you suddenly felt like watering these plants, because you were disturbed by the dryness of each and every plant flower. So you thought of watering it. So you took pipe and turn on the valve, and after turning on the valve you observe something, that the water was not coming as forcefully it used to be before. So मीन्स आई मीन टू से इज़ दैट, समझ लो आप किसी एक गार्डन में खड़े हो, और उस गार्डन में आप किसी गार्डन में खड़े हो, और सडनली आपको ऐसा फील होता है कि अरे यार मुझे इन प्लांट्स को पानी देना है, क्योंकि ये काफ़ी सूखे लग रहे हैं. सो यू टुक द पाइप एंड टर्न ऑन द वाटर. आपने नल चालू किया. तो नल चालू करने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि
अरे यार अरे यार ये पानी तो उतने फोर्स से नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। तो when you noticed it that suddenly you notice that there was some bend of pipe in between। आप तभी नोटिस करते हो कि आपका जो पाइप था वो आपका पाइप एक तरफ से बेंड हो चुका है। तो उसी बेंड होने की वजह से पानी ब्लॉक हो रहा था। ड्यू टू दैट बेंड पैसेज योर पाइप वॉज नॉट एबल टू थ्रो वाटर as it threw before। So there are two options to resolve this problem। First is to open the valve completely so that you can approach a full pressure of water, which I think is a bit time taking। And after that, second and most obvious solution is to remove that bend and let your water flow freely and very forcefully। As I have narrated this situation, you can link this with your habits also। अरे अबे काय केलास हल्लोय। Turning on the valve completely means you are going to approach one habit with some motivation। देखो भाई, अभी मैंने जैसा बताया वो जो पाइप था, तो वो जो पाइप था वहाँ जो बेंड हुआ था उसकी वजह से सारा पानी ब्लॉक हो रहा था। और उसके लिए सॉल्यूशन ये है, तो वो पानी आपको अगर नॉर्मल फ्लो पे ही डालना है तो दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट है कि आप वॉल्व यानी नल पूरी तरह से घुमा दो जिससे कि पानी हो सके उतने प्रेशर से नल से पाइप से बाहर निकल सके। और सेकंड और मोस्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन ये है कि आप उस बेंड को ही रिमूव कर दो और उसको स्ट्रेट कर दो। तो ये जो सिचुएशन है और इसके दो सॉल्यूशन है, इसको आप अपनी हैबिट्स के साथ भी लिंक कर सकते हो। वो कैसे, मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो वो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने पूरा वॉल घुमा दिया जिससे कि पूरा पानी उसके अचीवेबल फोर्स से बाहर आ सके। आपने अगर वो नल पूरा खुला कर दिया जिससे कि पूरा फोर्सफुली वो पानी बाहर आ सके, उसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो अपने हैबिट्स के साथ कि आप कोई अच्छी हैबिट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो और उसे आप करने के लिए हर बार कोई ना कोई मोटिवेशन ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कल से ज़्यादा लेक्चर्स देखने हैं तो आप क्या कर रहे हो पता है क्या? वो लेक्चर देखने के लिए कोई तो एक्सटर्नल मोटिवेशन ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हनुमान चालीसा सुन रहे हो, या फिर सोनू शर्मा की कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा ली, या फिर विवेक बिद्रा की स्वामी विवेकानंद वाली वीडियो लगा ली, और संदीप महेश्वरी की कोई वीडियो लगा ली, ओशो की कोई वीडियो लगा ली। ऐसे तो ये बिल्कुल काम का नहीं है। और अगर फोकस करें हम दूसरे सॉल्यूशन पर, दूसरा सॉल्यूशन था कि उस बेंड को ही निकाल दो जिससे कि पानी अपने पहले के फ्लो से बाहर आ सके। तो वो उसे आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि आप जो हैबिट परफॉर्म करना चाहते हो उसे आप पहले से ही अपनी लाइफ में या फिर रूटीन में इनकलकेट कर चुके हो। तो वो कैसे, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो वो ऐसे कि अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि मैं खाना खाने के बाद जब मुझे थोड़ी सी नींद आ रही होती है तब मैं मुंह पे पानी मार के एक लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा। इसी प्रकार से हमने बेंड रिमूव किया हमारे। तो ये कुछ नहीं, बस
दो सॉल्यूशन है, तो वो पूरी तरीके से वॉल्व ओपन करने को मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन वाला सॉल्यूशन, और बेंड रिमूव करने वाले को मैं नाम दे सकता हूँ कि आपने एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस या फिर उस काम के प्रति फ्रिक्शन कम किया। तो उसे आपने कैसे कम किया? अपने इन्वायरमेंट को वैसे सेटअप करके। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, rather than trying to overcome the friction in your life, you reduce it। कितना ईजी है यार, आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की जगह रिड्यूस कर रहे हो। मैंने अभी जो बताया वो भी यही था कि आप मोटिवेशन लेकर कोई भी गोल कंप्लीट करना चाहते हो तो वो काम का नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही लिमिटेड रहेगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म। हाँ, वेयर एज अगर आप उसी हैबिट को अपने इन्वायरमेंट में इनकलकेट कर लो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे कि अगर आपने ऐसे सोच लिया कि खाना खाने के बाद मैं अपनी बुक, खाना खाने के बाद मैं खाना खाने के बाद मैं जब मोबाइल देखते बैठता हूँ तो जिस जगह पे मैं मोबाइल देखते बैठता हूँ उसके बाजू में एक कोई भी अपनी क्लास 11th या फिर 12th की बुक रख दूंगा, जिससे कि मुझे याद रहे और मुझे सिग्नल ट्रिगर मिले मुझे हाँ एक लेक्चर और देखना था। तो यही था वो बेंड को निकाल देना। और आगे भी बताता हूँ मैं आपको। कि ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ मैं कमेंट में भी एक बार लिख दूंगा, जैसे कि आपको अगर आप दूसरी बार ये वीडियो देख रहे हो तो ये सेंटेंस आपको मिल जाए। rather than trying to overcome the friction in your life, you reduce it। कितना सिंपल है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही सिंपल है। और इसे मैं आपको एक बहुत ही बिजनेस माइंडेड बिजनेस के टर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जब पहली बार वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स रिलीज़ हुए थे, जैसे कि अभी जो एलेक्सा है ना, तो वो आने से पहले उसके भाई बहन या फिर ऐसे वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स आ चुके थे। तो तब का ये एक्सपीरियंस है जो कि जेम्स क्लियर अपने दोस्त के साथ हुआ इंसिडेंट बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पहली बार वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स रिलीज़ हुए थे, प्रोडक्ट जैसे जिनका मैं नाम बता दूँ, गूगल होम, अमेज़ॉन इको या फिर एप्पल होम पॉड। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, उस दोस्त ने हाल ही में ऐसे ख़रीदा था, तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा तुझे इस चीज़ के बारे में क्या खास लगता है? तो उसने कहा ये बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं सिंपली बोलूँ प्ले सम म्यूज़िक। तो प्ले सम म्यूज़िक, हाँ, ये बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं सिर्फ बोलूँ प्ले सम म्यूज़िक और मेरा मनचाहा म्यूज़िक सुनो, बजाय इसके कि मैं अपने जेब से मोबाइल निकालूँ, इंटरनेट ऑन करूँ, सर्च करने के बाद प्ले करूँ, ऐड होने दूँ, ऐड होती है ना, अपनी ऐड कंप्लीट होने दूँ और उसके बाद प्ले सॉन्ग चलने दूँ। हाँ, तो ये हुआ। हाँ, तो वो बोलते हैं ये बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं सिर्फ बोलूँ प्ले दिस सॉन्ग, बजाय कि मैं अपना मोबाइल निकालूँ, म्यूज़िक का ऐप ओपन करूँ और उसमें से एक प्लेलिस्ट चूज़ करूँ, उसमें मेरा सॉन्ग ढूंढते बैठूँ और उसमें वो सॉन्ग चलाऊँ। और मैं आपको ताज्जुब की बात है कि कुछ साल पहले अनलिमिटेड, ये जो अभी मोबाइल पे हम कर सकते हैं ना, उसको अनलिमिटेड म्यूज़िक एक्सेस बोलते हैं। तो अनलिमिटेड म्यूज़िक एक्सेस
ताज्जुब की बात है कि कुछ साल पहले ये जो है ना अनलिमिटेड म्यूज़िक एक्सेस, जो कि आप अपने मोबाइल से कभी भी कोई भी गाना सुन सकते हो, वो पहले एक प्रिविलेज माना जाता था, या फिर काफ़ी फ्रिक्शनलेस काम था उन टाइप के लोग, उस समय के लोगों के लिए फ्रिक्शनलेस वर्क था। क्योंकि उस टाइम को क्या होता था पता है क्या? उस टाइम लोगों को ये उन लोगों को इजी लगता है, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को सीडी लानी पड़ती थी, सीडी का प्लेयर चाहिए था। सीडी का प्लेयर लगाने के बाद वो उस सीडी में कम से कम 2, 3, 4 ही म्यूज़िक होते थे। और उनको सोचो, उनके टाइम पे ये अनलिमिटेड म्यूज़िक एक्सेस आया था, तो उनको कैसा लगता होगा, अरे यार मेरे पास एक चीज़ है जिस पे कि मैं अनलिमिटेड म्यूज़िक चला सकता हूँ, और वो सिर्फ मेरे जेब में रहती है। उसको कुछ लाने की, उसको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई डिवाइस नहीं लगता सीडी चलाने के लिए, कोई डिवाइस नहीं लगता चलाने के लिए। सिर्फ मोबाइल से निकालो, देखो, ऐप खोलो और म्यूज़िक सर्च करो, सुनो। तो अगर आपको समझ आया तो वही उन्होंने ऐसे आश्चर्यजनक तो वही जेम्स क्लियर ने यहाँ पे बात की है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे धीरे धीरे फ्रिक्शनलेस वर्क की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो और यहाँ पे एक सेंटेंस में बहुत ही हाईलाइट करना चाहूँगा, जिस कारण मैंने कहा बिजनेस क्या बोल सकते हो उसको, बिजनेस डिराइव्ड एग्जाम्पल दिया है मैंने इस लाइन की वजह से। तो बिजनेस इज़ अ नेवर एंडिंग क्वेस्ट टू डिलीवर द सेम रिजल्ट इन एन ईजियर फैशन। मैं फिर से बोलूँगा, बिजनेस इज़ अ नेवर एंडिंग क्वेस्ट टू डिलीवर द सेम रिजल्ट इन एन ईजियर फैशन। तो बिजनेस कुछ नहीं, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को वही चीज़ और आसान तरीके से करने पे मजबूर कर दे, या फिर करने में मदद करे। तो हमारी लाइफस्टाइल भी पहले के कंपैरिजन में आज बहुत ईजी हो चुकी है, क्योंकि हमको सब यहाँ पे बैठे बिठाए मिल जाता है। और उसके मैं काफ़ी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट में देखो तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई फूड ऑर्डर किया है घर पे, तो वो आपका राशन खरीदी और घर पे कुछ बनाने का काम एलिमिनेट कर देता है, और आपको वहाँ एलिमिनेट कर देता है। सेकंड बोलूँ तो ये जो राइड शेयरिंग सर्विस होती है, जिसमें कि कौन सा ऐप रहता है, हाँ, रैपिडो। तो आपने रैपिडो ऐप का नाम सुना ही होगा, जिसमें कि आप अपनी राइड बुक कर सकते हो। यानी कि आपको अगर कहीं पे छोड़ना है तो एक बाइक वाला आएगा, तो आपको उसके साथ बैठ के कहीं भी आप जा सकते हो। तो वो आपका चलना, आप चल के कहीं भी जाते हो ना, तो वो आपका चलना एकदम एलिमिनेट कर देगा। और एक एग्जांपल बताऊं, हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है टेक्स्ट मैसेजिंग। यानी कि अगर आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो या फिर टेलीग्राम पे, तो वो आपका लेटर पोस्ट करना एलिमिनेट कर देता है। लेटर के लिए कितना झंझट चाहिए था, पेपर लो, उस पर पेन लो, लिखो, एक स्टैम्प चिपकाओ, वो पोस्ट ऑफिस में दो, पोस्ट ऑफिस डिलीवर करने में 3 दिन लगाएगा। फिर ऐसे इसके कंपैरिजन में टेक्स्ट मैसेजिंग बहुत ही आसान है। तो यही है बिज़नेस। मैं फिर से रिपीट करूँगा, और ये भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। बिजनेस इज़ अ नेवर एंडिंग क्वेस्ट टू डिलीवर द सेम रिजल्ट इन एन ईजियर फैशन। तो इस वीडियो का और इस चैप्टर का मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सेंट्रल आइडिया इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर डूइंग द राइट थिंग इज़ एज ईजी एज पॉसिबल। तो इस पूरे चैप्टर का, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस पूरे वीडियो का सेंट्रल आइडिया यही है कि आप अपने इन्वायरमेंट को ऐसे बनाओ कि आपको जो हार्ड हैबिट लगती है, या फिर ऐसी हैबिट लगती है जो उतनी डोपामिन डिराइव्ड नहीं है, तो वो
सबसे ईजी से ईजी वे में कैसे हो सकती है वो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। और इसको मैं और एक तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाओ कि आपकी जो एकदम हार्ड हैबिट है ना, हार्ड हैबिट मतलब जो उतनी डोपामिन ड्राइव नहीं है, वो भी आपको सबसे ईजी से ईजी लगने लगे। तो अगर आपको सच में ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है और सच में यहाँ तक कोई देख रहा है तो उनके लिए मन से थैंक यू। और एफर्ट थोड़े लगे हैं भाई इस वीडियो में, हाँ तो कोई नहीं। अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे आप ज़रूर से एक पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊँ और ऐसी ही अच्छी नॉलेज की बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया इस बुक से, फिर भी मैं आपसे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँ जिससे कि आपको भी नॉलेज मिले उतनी की जितनी मैं गेन कर रहा हूँ, आपको भी उतनी नॉलेज मिले जितनी मैं गेन कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ का मैं नाम रखने वाला हूँ 1% better every day. So I'm going to name it 1% better every day. So if you have really liked this video, please don't forget to subscribe my channel so that I can remain motivated and keep consistency to make such type of videos. And you can comment also. If you're still watching till now, then I am thanking you from the bottom of my heart. So thank you, thanks for watching everyone, thanks, bye bye.